And prime accused Mihir Shah has now confessed that he was indeed behind the wheels when the horrific incident happened. Furthermore, the cops now believe that Mihir, who is the son of Shinde camp leader Rajesh Shah, also tried to conceal his identity by shaving his beard. Now, meanwhile, the cops have also collected enough evidence to establish the fact that accused Mihir Shah had in fact consumed hard liquor, which now proves that he was drunk driving. Importantly, the legal age of consuming hard liquor is 25 years in the state of Maharashtra, while Mihir Shah, who is of course the accused, is only 23. Now, illegally built parts of the pub, which also served alcohol to the accused, have also been demolished. These are visuals there of the demolition act. This was carried out after the license of this particular pub was also earlier suspended by the state's excise department. The cops have also now established a sequence of events which eventually led to Mihir's arrest. Now, allegedly, the accused called up his politician father immediately after crashing the BMW. Now, the father of the victim then told him to leave the city immediately. He was assured that his driver will take the responsibility, he'll be taking the blame. And after nearly 40 calls between the father and the son in a span of merely a few hours, Mihir then insisted. In fact, he went to his girlfriend's place in Mumbai's Goregaon. After this, the accused, along with his two sisters, mother and a friend, also left for Thane. From Thane, Mihir then, along with his friend, came to Virar. This is exactly where he was caught. Now, the big blunder that he did was of switching on his phone. In fact, his friend switched on the phone, because of which Mihir's location was also immediately traced, after which he was arrested. In fact, all the others in this particular case have also been released by the cops, while Mihir still remains in custody. दिन पर दिन मैं कह सकती हूँ एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहली बात, 60 घंटे तक कोई मुख्य आरोपी छिपा रह सकता है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ तक कि उसने मुंबई के सारे बाउंड्रीज तक नहीं क्रॉस किए थे, विरार से पकड़ा गया है। अब बात करें मिहिर शाह की, बिल्कुल उसने अपना गेटअप चेंज करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को किसी तरीके से हाइड करने के लिए क्लीन शेव कर लिया, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि वो मुंबई के दरमियान ही था, बाउंड्रीज के अंदर ही था। अब पुलिस इस पर कितने स्ट्रिंजेंट एक्शन लेती है ये देखना होगा। इतने पब्लिक आउटरीच के बाद मैं दरअसल कह सकती हूँ कि आप देखिए, हम जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर केस ना होता तो ये इसी तरीके से इलीगल तरीके से एनक्रोचमेंट के साथ ये इसका दबदबा चल रहा होता। इसी तरीके से मिहिर शाह जैसे लाखों यहाँ पर लोग आते हैं, दारू का सेवन करते हैं, और हिट एंड रन केसेस अगर हो जाए तो इस तरीके की तोड़क कार्रवाई होगी। सबसे पहले बेसिस पे क्यों अथॉरिटीज नहीं जगती है, क्यों अथॉरिटीज सबसे पहले ये एक्शन नहीं लेती है? छज्जा नीचे गिराया जा रहा है। अब देखिए, ये पूरी कार्रवाई तब हो रही है जब इस पर मीडिया मैं कह सकती हूँ कि बहुत तेजी से इस पर रिपोर्ट करने लग गई। आप देखिए किस तरीके से अब जब जान जाती है तब अथॉरिटीज की नींद खुलती है, तब समझ में आता है कि जो पूरा सीक्वेंस जो है, आप चाहे देर रात तक इलीगल होटल्स एंड बार चलाए, इंक्रोचमेंट रहे, जो अंडर एज के लोग हैं जिन्हें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं सर्व करना चाहिए, सब होता है। यहाँ पर देर इसी चीज़ की होती है कि मीडिया रिपोर्ट करे और गलती से किसी न किसी की जान जाए। So this is of course as far as the investigation and also the action against this pub is concerned. But meanwhile, a political face-off has also erupted over the incident, with opposition leaders now questioning the alleged laxity on the part of Mumbai cops in arresting the politician's son. Listen in to some of the political reactions that are coming in. Mihir Shah, who is the son of Rajesh Shah, now he was hiding in Thane. Thane is a stronghold of Shinde Sarkar. What do you want to tell about I've said this, that this should be treated as a murder case, and I hope that these charges will be put for murder and there will be bulldozer justice as they do for other people. So do you think that this was an entire cover-up as he was caught after 60 hours? It seems like it now. First I said I will not politicize this case, but it seems like it. परिवार मांग कर रहा है कि मर्डर के चार्जेस भी लगाए जाए। विपक्ष भी कह रहा है कि ये खाली हिट एंड रन नहीं है, ये मर्डर का मामला है। नहीं, मर्डर तो हुआ ही है ना। आप देखेंगे तो वो गई एक स्त्री, वो तो कैसा हुआ है, देखो ना कितना क्रूर तरीके से हुआ है। सरकार की तरफ से कोई भी उनको मिलने नहीं गया अभी तक। आरोप ऐसे लग रहे हैं, वो फैमिली भी कह रही है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि किसी प्रकार की सहायता राशि या कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। सरकार बचाने में लगी है ना, ये सबके, मिहिर के और उनके। हमारे कांग्रेस के अध्यक्षा जो है वर्षाताई, वो जाके मिली उनको। जिस तरीके से घटना घटी है, मुंबई पुलिस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। 3 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार होता है, क्या कहेंगे सर?
बिल्कुल, मुंबई पुलिस इसके बारे में जो मुंबई पुलिस की भूमिका है वो संशयास्पद है, वो कुछ क्लियरिटी नहीं है उसमें। मुंबई पुलिस शायद वो आरोपी को मदद करने की भूमिका में लगती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पर मर्डर के चार्जेस लगाए जाए, ये हिट एंड रन का केस नहीं है। बराबर, हिट एंड रन एक्सीडेंट होने के बाद उस लड़के ने अपने गाड़ी के माध्यम से वो जो बहन है अपनी उसको खींचते लेके गया, इसका मतलब ये मर्डर है। जो पुणे की केस हुई थी उसमें सरकार ने कुछ मदद डिक्लेरेशन की थी, लेकिन मुंबई के केस में ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं किया है। After 3 days, the victim has been nabbed. There are several questions been raised on the way Mumbai police have acted on it. You are absolutely right. जो मुजरिम था, जो आरोपी था, उसको भागने की पूरी सहूलियत दी गई। 3 दिन के बाद उसको अरेस्ट किया गया। अभी 3 दिन के बाद उसको अरेस्ट करके उसका ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें कोई भी ब्लड में अल्कोहल पॉजिटिव नहीं मिलेगा। इस प्रकार की मदद राज्य शासन ने जो आरोपी है बरली का, उसको भागने में की है। जिस तरीके की भूमिका मुंबई पुलिस की रही, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है। अगर पॉलिटिक्स होता तो बच्चा गिरफ्तार ही नहीं होता। ये चीजें नहीं होती। कानून सबके लिए सरीका होना चाहिए, सरीका है। और उसका ये सिला जो देखते हैं आप कि उसको नेता का लड़का भी रहने के बाद कल उसको अरेस्ट किया गया, बल्कि सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया, तो वो जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे उनके फैमिली को भी उस दायरे में लाया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पुलिसों का क्रेडिट है। तो ये मुंबई पुलिस का आपने सबने मिलकर एक तो अभिनंदन करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई बड़ी सख्ती से कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय होम मिनिस्टर देवेंद्र जी है, शिंदे साहब है, सभी ने कहा है, जिन्होंने भी कहा है कि इसमें सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भाग जाता है हिट एंड रन, मतलब उसी का मतलब वही है कि भाई मार के वो भाग रहा है, तो उसके बाद में उसको मिलने को थोड़ा समय तो लगता ही है। पुलिस तो बहुत सतर्क है, रात दिन काम कर रही है, लेकिन अगर वो भाग गए तो 1-2 दिन लगते हैं, ज्यादा भी लगते हैं। और लेकिन पुलिस की कोई लापरवाही इसमें नहीं है, कोई लापरवाही नहीं। उसको कहा रात भर 3-3, 4-4, 2-2 बजे जाकर पुलिस ने पूरा कहां से फार्म हाउस से, रेस्ट हाउस से उसको ढूंढ निकाला है, उसके घर वालों को भी ढूंढ के निकाला है।